Welcome, Fox. I, Avinash Garg, the UPSC Digital Mentor, welcome you all to a discussion of M. Lakshmi Kant for UPSC. So now we are going to discuss about citizenship, the chapter of citizenship, about which we had already discussed certain pointers in the earlier video because this is the continuation of our earlier video. So if you had not watched that video, then I request you to please go and watch that video first and then come to this video to make better sense out of the topics that we are going to discuss in this video. So by saying that, let's get started off with today's topic, that is around citizenship. So let's get started. So guys, about citizenship, we had already discussed certain pointers. So firstly, let's revise them and then we will move toward the remaining topics. So in the earlier video, we had already discussed about the two type of peoples that can be in any country. So we discussed about the aliens and citizens, and aliens can be of two types, and that can be the friendly aliens and enemy aliens. Then we discussed about certain rights that are only confined for the citizens of the country, and then we understood, like in the case of India, there is single citizenship. So we had already discussed this thing in the preamble part. So definitely this is something that we will be going to discuss again and again, because this itself shows that how we want to promote brotherhood or fraternity using that single citizenship provision. So then we understood about the certain we can say reasonable restrictions, or we can say certain provisions that are actually against those provisions or those rights that we had already discussed in the rights only for citizenships or citizens. Then we understood about that in the case of India, the beauty of our constitution is that in our constitution it's just mentioned that who will become citizen of country at the time of commencement of our constitution. So basically it doesn't talk much about the changing trends about citizenship act. So what they did was they give the power to the parliament that they can make up the law that can actually inculcate all those values or can change according to the changing demography of our country. So basically by this we can understand कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि वो सिर्फ ये बताएगा कि कमेंसमेंट के टाइम पे कौन इंडियन सिटीजन था, बट उसके बाद कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, बाय बर्थ किसको सिटीजनशिप मिलेगी, बाय नेचुरलाइजेशन किसे सिटीजनशिप मिलेगी, ये सब चीज़ें जो है उन्होंने पावर दिया पार्लियामेंट को कि प्लीज़ आप बार बार इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मत करना, इसकी बजाय आप एक अलग से एक्ट बना लीजिए और उस एक्ट में जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट पावर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड दैट पावर इन योर हैंड, राइट। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। और इसके साथ ही जो हमारा पार्लियामेंट है उन्होंने जो एक्ट बनाया वो कौन सा है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें टाइम बाय टाइम चेंजेस आते रहते हैं। 1955 डजंट मीन कि ये 1955 में ही खत्म हो गया, मतलब तब से ही चला आ रहा है, तब से चला आ रहा है, बट इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स विद टाइम इंट्रोड्यूस की गई हैं, राइट। तो अब हम पहले ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोविजंस है। हमने ऊपर देखा ना, राइट, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में सिटीजनशिप आएगा और उसमें भी आर्टिकल 5 to 11 इसमें इलेबोरेट करते हैं कि सिटीजनशिप में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है। तो वो आर्टिकल 5 to 11 क्या है वो हम देखते हैं, वो क्या है अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के ऊपर। तो पहले हम अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब देखिए प्लीज, इट्स हाईली रिक्वेस्टेड थिंग कि प्लीज हैव द बेयर एक्ट विद यू। और ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप बेयर एक्ट आपके पास अभी नहीं है, आप ये एक्सक्यूजेस मत देना कि मुझे उसे खरीदना पड़ेगा और टाइम लगेगा। आप अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए प्लीज़ उसे आप बुक कर सकते हैं अमेजोन पे या जैसे भी आपको खरीदना हो। और उसके साथ साथ प्लीज़ हैव द सॉफ्ट कॉपी विद यू, जो कि आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगी, राइट। क्योंकि अब जो भी आप पढ़ोगे उसके साथ साथ इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू हैव द बेयर एक्ट विद यू। So Article 5 says citizenship at the commencement of Constitution. I had like opened the e-book type of thing of Bear Act. So let me open that. So here it is. So Article 5 that says at the commencement of Constitution, every person
has his domicile in the territory of India and who was born in the territory of India, either of whose parents was born in the territory of India or who has been ordinary resident of India. तो बेसिकली हम अब होता क्या है, जब कोई भी कंट्री न्यूली एस्टैब्लिश हो रही होती है तब उसके जो सिटीजनशिप देने के एक क्राइटेरिया होता है वो बहुत ज़्यादा लीनियंट होता है. लीनियंट इसलिए होता है क्योंकि उस समय लोगों के पास डेफिनेटली बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल होते, तो वो प्रूफ इतना अच्छे से नहीं कर सकते हैं कि वेदर दे आर एलिजिबल टू बी द सिटीजन ऑफ कंट्री और नॉट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वही चीज़ हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलेगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब कमेंसमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उस समय जो सिटीजनशिप राइट था या सिटीजनशिप जो थी वो मैक्सिमम लोगों को देने की कोशिश की गई थी कि ऐसा ना हो कि हमारे कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाने की वजह से जो वैलिड लोग हैं उन्हें सिटीजनशिप ना मिले. तो अब जो आर्टिकल 5 है वो यही बोलता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा है उस समय कौन कौन सिटीजन होगा जो कि इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुआ है या जिसके पेरेंट्स इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुए हैं या ऑर्डिनरी वो यहाँ पे रह रहा है इंडिया के केस में, उन सबको फॉर 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट उन सबको हम सिटीजन ऑफ इंडिया मान लेंगे, राइट. फिर वही चीज़ है, यहाँ पे जितने भी एक्ट्स जितने भी आर्टिकल्स हमें दिखेंगे वो सिर्फ ये बताएंगे कि कौन सिटीजन बन सकता है at the time of commencement of our constitution, so that's not very much relevant right now. So then let's come back to our mind map. So article 6 that says citizenship of certain persons who have migrated from Pakistan. अब उस समय की पॉलिटी सोचिए, उस समय एक तो हमें जो इंडियन टेरिटरी में लोग रह रहे थे उनके बारे में तो बोलना ही था, बट जो लोग माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान में उनके बारे में भी हमें डिस्कशन करना था, राइट. तो उसमें क्या बोला जाता है, notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India from territory now included in Pakistan shall be deemed to be citizen of India at the commencement of this constitution. कि जो माइग्रेट होके आया है पाकिस्तान से इंडिया में वो भी हम उन्हें भी इंडियन सिटीजनशिप देंगे. ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया. अब देखो पेरेंट्स तो छोड़ो, ग्रैंड पेरेंट्स भी इंक्लूड कर लिए कि कोई भी अगर इंडिया में बॉर्न हुआ है तो उनको हम लोग जो ये हमारी सिटीजनशिप है वो प्रोवाइड कर देंगे. तो ये सारी चीज़ें अब आर्टिकल 6 क्या इंश्योर करेगा कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आए हैं उन्हें बाद में आप देखोगे आज भी अब बहुत सारे आज तो नहीं पर हमने बहुत पहले एक मूवी भी आई थी रिफ्यूजी करके, और वैसे भी कई जगह पे जैसे पंजाब की तरफ में भी आपको ज़रूर दिखेगा, वहाँ पे आज तो इतना नहीं रहा पर पहले कुछ साल पहले ये ज़रूर बोला जाता था ये रिफ्यूजी है क्योंकि ये पाकिस्तान से जब बंटवारा हुआ था तब यहाँ पे आए थे. तो वो एक सॉर्ट ऑफ वो कनोटेशन ज़रूर रहता था लोगों के साथ, बट यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया कि ऐसा ना हो कि वो कनोटेशन की वजह से उनको कुछ बेसिक राइट्स ना मिल सके. तो आर्टिकल 6 पर्टिकुलरली ये दिखा रहा है कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आए हैं उन्हें भी सिटीजनशिप कैसे प्रोवाइड करनी है, राइट. देन कम्स आर्टिकल 7 दैट सेज सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान चले गए हैं उनका क्या. अब जो हमने वेट लेट मी ओपन दैट, अभी जो हमने आर्टिकल 5 देखा था उसके अकॉर्डिंगली तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुए थे, सब कुछ था, बट वो पाकिस्तान चले गए हैं. तो इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 and 6 अ पर्सन हु हैज आफ्टर द 1st day in March 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया टू टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रोवाइडेड क्या है, दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड, जैसे वो वहां गया फिर वापस इंडिया आ गया तो उनके साथ ये नहीं होगा, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी. क्यों दे दी जाएगी, अंडर आर्टिकल 6 जिसमें कि हमने देखा था कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया में आ रहे हैं उन्हें हम सिटीजनशिप दे रहे हैं. तो बेसिकली आप एक सिनेरियो देखिए कि जिसमें पहले उन्होंने सोचा नहीं मैं तो पाकिस्तान चला जाऊंगा, तो वो पाकिस्तान गए तो अंडर आर्टिकल 7 उनकी सिटीजनशिप खत्म हो जाती है. फिर क्या होता है, वो सोचते नहीं यार पाकिस्तान में अच्छा नहीं लग रहा, लेट्स गो बैक टू इंडिया, तो वो इंडिया में आ जाते हैं. तो जब वो इंडिया में आएंगे तो अंडर आर्टिकल 6 उन्हें वो सिटीजनशिप मिल जाएगी क्योंकि वो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आ रहे हैं, राइट. सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 6, 7 and 5. आई होप ये तीनों आर्टिकल्स आपको क्लियर हो गए हो. उसके बाद बात आती है आर्टिकल 6 की. सो आर्टिकल 6 से सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. अब फॉरनर्स भी हो सकते हैं, राइट, मतलब फॉरनर्स मतलब जो इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं वो भी हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या है वो अब डिस्कस करते हैं.
So for them, notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India defined in the Government of India Act 1935 and who is ordinarily residing in any country outside India is so defined shall be deemed to be citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic और consular representative. So basically जो फॉरेन में इंडियंस रह रहे हैं उन्हें भी सिटीजनशिप कैसे प्रोवाइड की थी. फिर आता है आर्टिकल 9. नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्चुअल ऑफ आर्टिकल 5 or deemed to be citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he voluntarily acquired the citizen of any foreign state. अगर इंडियन था, मतलब सपोज कोई भी पर्सन है उसके पास सिटीजनशिप आती है, इंडियन सिटीजनशिप आती है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स दैट वी हैव डिस्कस. आर्टिकल 5 हो सकता है, आर्टिकल 6 हो सकता है या फिर आर्टिकल 8 भी हो सकता है. उस केस में हम लोग ये नहीं मान सकते कि उसके पास वो सिटीजनशिप रहेगी अगर वो फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर रहा है. और वो कैसे होगा? आपको पता है इंडिया के केस में ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है. या तो आप इंडियन सिटीजन रहोगे या तो फिर आप किसी और कंट्री के सिटीजन होंगे. दो बेड़ियों में आप पैर नहीं रख सकते हो. तो वो यहाँ आर्टिकल 9 बोल रहा है कि दो बेड़ियों पे पैर नहीं रखना. या तो इंडियन सिटीजन बनो, अगर इंडियन सिटीजन नहीं हो, तुम्हारे पास कोई फॉरेन की सिटीजनशिप है फॉरेन कंट्री की, तो उस केस में तुम इंडियन सिटीजन नहीं रहोगे. सो देन कम्स आर्टिकल 10. Every person who is or is deemed to be citizen of India under any of foregoing provision of this part shall subject to provisions of any law that may be made by Parliament. अब यहाँ पे आर्टिकल 5 में हमने देखा कि बेसिकली जो इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं उन्हें कैसे सिटीजनशिप दी, राइट. आर्टिकल 6 में हमने देखा कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आ रहे हैं उन्हें कैसे सिटीजनशिप दी. आर्टिकल 7 में देखा जो पाकिस्तान माइग्रेट होके चले गए उनको हमने सिटीजनशिप उनसे कैसे ले ली. फिर हमने आर्टिकल 8 में देखा कि जो भी इंडियंस हैं जो फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं उनको कैसे हमने सिटीजनशिप देनी है, तो हमने वो चीज भी कर ली. फिर हमने फिफ्थ आर्टिकल, हम 9th आर्टिकल बोल सकते हैं, जिसमें हमने ये देखा कि अगर आपके पास फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप है तो उस केस में आपकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी. अब सिटीजनशिप वाला क्लियर हो गया. फॉरेन भी देख लिया, जो माइग्रेट होके आया उनको भी देख लिया और जो रिजाइड कर रहे थे उनको भी देख लिया. तीनों डायमेंशन कवर. फिर अब बात आती है कि अब जो सिटीजन बना है उसके लिए जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो सब उनके लिए एप्लीकेबल होगा, तो उन्हें वो सारे अबाइड करने पड़ेंगे. ये है आर्टिकल 10. पहले उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से बारीकी से बताया, फिर आर्टिकल 10 में ये बोल दिया. फिर आर्टिकल 11 क्या बोलता है? नथिंग इन दिस foregoing provision of this part shall derogate from the power of parliament to make the provision with respect to acquisition, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप. कि यहाँ पे आर्टिकल 11 अब एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि उनके पास पावर है कि वो अपने हिसाब से एक्ट बना के किससे सिटीजनशिप एक्वायर करने की परमिशन देनी है, वो एक्विजिशन, और किसकी सिटीजनशिप खत्म करनी है. क्योंकि अभी हमने देखा ना सिटीजनशिप जितना देना अच्छा मतलब जरूरी है उससे ज्यादा उनकी टर्मिनेशन भी जरूरी है. तो दोनों चीजें वो कौन करेगा? पार्लियामेंट. उनके पास ये प्रॉपर राइट है कि वो सिटीजनशिप को अपने अकॉर्डिंगली जो टाइम के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्ट बना के वो चेंज कर सकते हैं, राइट. तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें आर्टिकल 10 हमने डिस्कस कर लिया, 11 कर लिया, राइट. तो मुझे होप है कि आपको अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से क्या क्या है वो आपको सिटीजनशिप का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. अब बात आती है जो आर्टिकल 11 के अंदर पार्लियामेंट को पावर मिला है कि वो कैसे टर्मिनेशन और एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के अकॉर्डिंगली वो एक्ट बना के उसे रेगुलेट करेगी. अब उसके बारे में देखते हैं जिसके लिए उन्होंने एक्ट बनाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955. अब यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, वो हमने पहले ही देख लिया. आर्टिकल 11 में भी बताया कि एक्विजिशन और टर्मिनेशन, बट बेसिकली टर्मिनेशन फर्दर टाइप्स का होता है तो इसलिए लॉस ऑफ सिटीजनशिप हम उसे ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं. तो एक्विजिशन के बारे में पहले बात करते हैं. अब अगर हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं तो सिटीजनशिप एक्वायर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इंडिया के केस में. तो इंडिया में बाय बर्थ हो सकती है, बाय डिसेंट हो सकती है, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन. अब यहाँ पे अगर हम बाय बर्थ बोले तो बाय बर्थ हम नाम से क्या समझ रहे हैं कि जो बाय बर्थ हमें वो एक राइट मिल जाएगी, एक सिटीजनशिप मिल जाए, उसे हम बाय बर्थ बोलते हैं. जो बॉर्न आफ्टर 26 Jan 1950 एंड बिफोर 1 July 1987 दैट विल बी सिटीजन बाय बर्थ. कि अगर इंडियन टेरिटरी में आपका जन्म हुआ है, चाहे आपके पेरेंट्स कहाँ से भी थे, कुछ भी था बिटवीन दैट टाइम जोन टाइम पीरियड, तो उस केस में आपको बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी. दैट वाज वैलिड अप टू 1987.
फिर 1 जुलाई 1987 से बिफोर 3 दिसंबर 2004 इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर सिटीजन। अब उन्हें लगता है कि यार इस तरह से तो सबको ही चली जाएगी सिटीजनशिप, जो भी मतलब तुम फॉरेन में जाओ, मतलब तुम कहीं भी किसी भी कंट्री में रहो, और जब तुम्हें लगे कि बेबी डिलीवर करने का टाइम है देन जस्ट कम टू इंडिया, और उस बंदे को या उस बच्चे को तो बाय डिफॉल्ट सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, एक काम करते हैं, अब ऐसा करते हैं, हम ऐसा एक रूल बना देते हैं कि उन दोनों मतलब उस बच्चे के माँ या बाप दोनों में से एक पेरेंट जो है वो इंडियन होना चाहिए, उनके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। चलो वो कर दिया। फिर उन्हें लगा कि अरे इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ये भी तो हो सकता है कि दूसरा इलीगल माइग्रेंट हो, ये भी तो एक चीज हो सकती है ना। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि फॉरेन कंट्री की जब सिटीजनशिप लेने के लिए लोग गलत या झूठे शादियां कर लेते हैं एंड आफ्टर मतलब एक प्रॉपर बिजनेस चलता है और उसके बाद वो डाइवोर्स दे देते हैं जब उन्हें वो उनकी जो राइट है सिटीजनशिप है वो मिल जाती है। तो वैसे यहाँ पे भी हो सकता है। तो फिर उन्होंने सोचा नहीं नहीं, ये भी ज़रूर करते हैं कि आफ्टर 3 दिसंबर 2004 ओनली इफ बोथ द पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन इज सिटीजन और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तभी आपको बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलेगी। राइट, सो ये है बाय बर्थ का। आई होप ये याद रहेगा। अब बात आती है डिसेंट की। तो यहाँ पे क्या है, जो बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1992 December 10, 1992 if his father was citizen of India at time of his birth। अगर आपके डिसेंट बेसिकली हमारे यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी में तो ऐसे ही चलता है ना, ग्रैंड पापा से या ग्रैंड फादर से, फिर फादर से, इस तरह से। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि अगर आपके फादर आपके जन्म के समय पे इंडियन सिटीजन थे तो आपको बाय डिसेंट आपको वो सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी if you belong up to the time of 1992। उसके बाद आफ्टर दिसंबर 10 1992 इफ आइदर ऑफ पेरेंट्स वाज सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों में से एक हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि अब वो एक तरह से वो न्यूट्रलिटी लेके आ गए। फिर आया फ्रॉम दिसंबर 2004 ऑनवर्ड्स ओनली इफ बर्थ इज रजिस्टर्ड एट इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो ये हो गया बाय डिसेंट। राइट, फिर आता है बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में किस तरह से होगा, इफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ कंट्री फॉर 7 ईयर्स। अब अगर आप 7 साल से इंडिया में रह रहे हो तभी आप रजिस्टर कर सकते हो। मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑर्डिनरी रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। फिर माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे प्रोविजंस हैं। सो दीज ऑल विल परटेन विद रिगार्ड टू बाय रजिस्ट्रेशन की बेसिकली आपको 7 साल तक इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू एक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप। फिर आता है नेचुरलाइजेशन में, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकती है। कब कर सकती है? इफ ही इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ कंट्री जहाँ पे इंडियन सिटीजन्स को बाय डिफॉल्ट बाय नेचुरलाइजेशन उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलती, तब उस केस में वो नहीं ग्रांट कर सकते। बट अगर कोई भी सिटीजन है, कोई भी पर्सन है और वो किसी ऐसी कंट्रीज का सिटीजन है जहाँ पे बाय नेचुरलाइजेशन इंडियंस को भी सिटीजनशिप मिलती है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसा कर सकती है। राइट, सो दिस इज अबाउट नेचुरलाइजेशन। तो यहाँ पे 4 टाइप्स हमने डिस्कस किए। फर्स्ट था बाय बर्थ, फिर डिसेंट, थर्ड रजिस्ट्रेशन एंड फोर्थ नेचुरलाइजेशन। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि अगर कोई इंडिया टेरिटरी एक्वायर कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी जो सिटीजन्स है उन्हें भी इंडियन सिटीजनशिप बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। फिर आता है स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजन्स ऑफ पर्सन कवर्ड बाय असम अकॉर्ड, जिसमें कि वो नेशनल रजिस्टर वाला चीज़ आ जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे उनके ट्रिब्यूनल, अगर फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है वो कह दें कि नहीं ये पर्सन सिटीजन नहीं है तो वो सिटीजन नहीं रहेगा, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे कवर होती है। एंड आई ट्रूली बिलीव कि आपको ये जरूर पता होगा नेशनल जो रजिस्टर वाली बात है अबाउट द असम। फिर हमें पता है कि ये थोड़ा सा डिबेट में भी रहा था कि जो स्पेशल प्रोविजन बना है किनके लिए, जो सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी जो पर्सन माइग्रेट होके आ रहे हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान विद रिगार्ड टू सर्टेन कैटेगरीज लाइक जो कि माइनॉरिटी कैटेगरीज हम लोग वहाँ के हिसाब से देख सकते हैं। तो उनके लिए ये स्पेशल प्रोविजन ऐड किया गया था इन द एक्ट। राइट, ताकि उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा सके। और ये है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कि किस तरह से इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। फिर आता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अगर हम लॉस की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स आता है, एक तो रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड देन द डेप्रिवेशन। रिनंसिएशन में क्या होगा, जब आप वॉलंटरीली आप अपनी जो इंडियन सिटीजनशिप है उसे खत्म करते हो कि मुझे इंडियन सिटीजन नहीं रहना है, तो
उस केस में क्या होगा, जो आपके खानदान का छोटे से छोटा बच्चा भी होगा उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको रिनंसिएशन में अपनी जो सिटीजनशिप है उसे छोड़ा है। बट यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है कि जब वो बच्चा 18 साल की एज का हो जाता है, क्योंकि तब उसकी अपनी समझ है, उसकी अपनी सोच है, हो सकता है उसके फादर को इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए थी या मदर को नहीं चाहिए थी, वो उसे चाहिए हो, तो उस केस में तब वो दोबारा से अगर चाहे वो एक्वायर कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप। बट अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स तो उसकी जो सिटीजनशिप है इंडियन सिटीजनशिप वो खत्म रहेगी, राइट। तो ये है रिनंसिएशन, जिसमें कि आप वॉलंटरीली अपनी जो सिटीजनशिप है उसे खत्म करते हो कि मुझे नहीं इंडियन सिटीजनशिप ले चाहिए। फिर है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा, जो मैंने आपसे पहले भी बोला, हमने आर्टिकल में भी देखा कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूल सिटीजनशिप का प्रोविजन नहीं है। तो अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडियन सिटीजन अगर कोई फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो उस केस में उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो बाय डिफॉल्ट टर्मिनेट हो जाती है। सो दैट इज टर्मिनेशन। देन आता है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन में क्या है कि एक तरह से ये भी टर्मिनेशन है कि उसकी जो सिटीजनशिप है वो खत्म होगी, मगर ये कंपल्सरी टर्मिनेशन है। क्यों है? क्योंकि अगर ऐसा पाया जाता है कि जो वो पर्सन था उसने इंडियन सिटीजनशिप ली थी बाय यूजिंग एनी फ्रॉडेंट वे, कि कुछ भी फ्रॉड करके उसने सिटीजनशिप ली थी, या उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ कुछ डिसलॉयल्टी की है इंडिया के साथ, मतलब जैसे सपोज करो एक ही वॉर का ऐसा कुछ सिनेरियो था, या कुछ हमारी बहुत स्पेशल इंफॉर्मेशन थी जो लीक कर दी, कुछ इस तरह का किया है, तो उस केस में उसके साथ ये हो सकता है। देन विद इन 5 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, कि दोनों में से किसी भी थ्रू, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू उसे सिटीजनशिप मिली थी और फिर वो फॉरेन टेरिटरी में जाके इम्प्रिजन रहा है फॉर 2 ईयर्स, मतलब वो किसी भी कंट्री में जाके अगर वो 2 साल, जो 5 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है आफ्टर नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन, अगर वो 2 साल के लिए कैद में रहा है, जेल में रहा है, तो उस केस में उसकी जो ये सिटीजनशिप है वो भी खत्म हो जाएगी। सो दीज 3 विल पर्टेन टुवर्ड द डेप्रीविएशन, राइट, कि किस तरह से उस बंदे को डिप्राइव किया जाएगा उसकी सिटीजनशिप के लिए। So these are the loss of citizenship. So now I hope you understand कि acquisition कैसे होगा और loss of citizenship कैसे होगा। So that was about the Citizenship Act 1955 and by this we are well off with the pointer कि citizenship क्या है, कैसे वर्क करती है, अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या प्रोविजंस है। फिर हमने देखा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंगली क्या क्या प्रोविजंस है, उसमें कैसे जो सिटीजनशिप है उसे एक्वायर किया जा सकता है, और दूसरा हमने देखा कैसे उसकी जो किसी भी पर्सन की सिटीजनशिप है उसका लॉस हो सकता है, जिसमें 3 हमने फर्दर कैटेगरीज देखी थी, राइट। So I hope now you are well aware about it. So at the end let's again revise them. सबसे पहले हमने देखा 2 टाइप्स ऑफ पीपल, एलियंस एंड सिटीजन्स, उनके कौन से राइट्स हो सकते हैं, कौन से एक्सेप्शंस हैं। फिर हमने देखा कि कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ ये बताता है कि कमेंसमेंट के टाइम पे कौन कौन इंडियन सिटीजन बना था, और फिर जो पावर है पार्लियामेंट को दी जाती है कि वो सिटीजनशिप एक्ट बना के रेगुलेट कर सकते हैं सिटीजनशिप के रूल्स वगैरह, और जो कि हमारी गवर्नमेंट या हमारी पार्लियामेंट करती है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंगली। फिर हमने देखा अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से जो एक्ट, जो हमारे पास आर्टिकल हैं वो हमने देखे बहुत अच्छे से, मेरे को लगता है हमने बहुत इन डेप्थ डिस्कस किया है, तो आई होप यू गेट वैल्यू आउट ऑफ इट। अदरवाइज आप प्लीज उसे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, बिकॉज वी हैड डिस्कस्ड इट इन अ वे कि अगर आप फुली फोकस वे में देखा होगा तो आपको वो जरूर याद हो गया होगा। सो दैट इज अबाउट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन द सिटीजनशिप एक्ट 1955 इन विच वी डिस्कस्ड कि किस तरह से एक्विजिशन हो सकता है सिटीजनशिप का, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, ये सब रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, और जब टेरिटरी इंक्लूड हो जाएगी उस केस में फिर हमने स्पेशल प्रोविजन जो है असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली वो देखा था। फिर हमने देखा कि कैसे जो पर्टिकुलर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ से जो माइग्रेंट्स आते हैं उनके रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजन है वो देखा। फिर हमने लॉस ऑफ सिटीजनशिप देखा, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन के अकॉर्डिंगली किसी भी सिटीजन की जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो सकती है, राइट। सो दैट वाज अबाउट सिटीजनशिप एक्ट। सो बाय दिस our whole chapter related to citizenship gets over. I hope you understand each bit of citizenship right now, and please guys, if you have any feedback, if you think you need if you think that there are certain pointers that you are missing or you are not able to just comprehend in a better way, or you have such any feedback related to video, then do let me know in the comment box below, because I will love to see that, because the reason why we are all here is
We want to just have the success for you that is in this UPSC sphere. So that was it for this videos, guys. And again, I reiterate on the same thing. If you like the video, do hit the like button, and please also remember there is a masterclass that I conduct regularly. So just register for it right now by clicking on the link given in description below. And if you had not subscribed to my channel yet, then I request you to do that right now so that all the notification of the new videos get delivered to you. For that, you have to also enable the bell icon. So thank you so much, guys, for being there. Don't forget the right feedback about the video in the comment box below. I will love to see your feedbacks over there. So see you all in the next video with the next chapter. Till then, bye bye, guys.